Hello everyone, today I discuss your other data type, that is list, tuple and dictionary, but today I discuss list only. Okay, list is a data type. Now what is definition of list? List are used to store multiple item in a single variable. This is our list. We can store these multiple items in our list A. Name of our list is A in this case. Okay, list are four built-in data type in Python used to store collection of data type, and other are list हमारा built-in data types है like integer, float, string. Likewise we have list data type. Okay, and we have three more this type of data type. These are tuple, set and dictionary. Okay, and these having qualities, different qualities and different uses. Okay, list can be created using square bracket. Okay, in case of list we use these square brackets. Okay, write your variable name that you decided for your list, like a, yeah, this list you can use any variable name to write to create that list. Then inside that write any type of data type variable values. Okay, and you can print your list like this. Here in this example, like I have list A, then I can write print A. Okay, if I do it like this, it will print my list values. Then next is list item. List item are ordered and changeable and allow duplicates values. Okay, list item are indexed with the first item has index 0 and the second item has index 1. Okay, item of index, if I write A 0 value, then it will print first item because index value of first item is 0, index value of second item is 1. Likewise you can check index values of all other items. Okay, so check a0 is apple. If you print, if you want to access value of a0, then it will print apple. Okay, because index value of apple is 0. Ordered. When we say that list are ordered, it means that the item has a defined order. हर एक का एक order है, हर एक का एक index value है. Okay, if you write A5, that will give you index जिसका 5 number है, that output. Okay, कोई random value आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, and that order will not change. ये order change नहीं होगा. Okay, if you add new item to a list, the new item will be placed at the end of the list. अगर आप add कर रहे हैं, आप insert between भी कर सकते हैं, आप add कर रहे हैं तो end में add होगा. Changeable. The list is changeable, meaning that we can change, add and remove item in a list after it has been created. अगर आपका लिस्ट एक बार क्रिएट हो चुका है, वहां से आइटम आप चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं. List allow duplicate item. Like in our list we have apple, we can create one more item like apple. Duplicate entries are allowed in case of a list, like we have two apples here. Next is list length. To determine how many item a list has, use the len function. Okay, in that case we use len function. If I want to check length of this list, then I will use len of a. It will give me number of item in my list. Okay, in my list I have 8 items, so you can check length of your list. Write len function. Len is inbuilt function जो आपको length print करेगा आपका given list का प्रोग्राम. ओके, ये आपका लिस्ट है, इसमें 3 आइटम है, आपने वहाँ पे लेंथ फंक्शन दिया है, इट विल गिव यू 3 आंसर. लिस्ट आइटम डेटा टाइप. लिस्ट आइटम कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप. जो लिस्ट के अंदर आइटम है वो किसी भी डेटा टाइप के आपके हो सकते हैं, लाइक लिस्ट 1 हैविंग ऑल स्ट्रिंग वैल्यूज, लिस्ट 2 हैविंग ऑल इंटीजर वैल्यूज, लिस्ट 3 having boolean variables values, and list 4 having collection of string, integer and boolean all types. Okay, एक लिस्ट के अंदर भी आप मल्टीपल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. हाउ टू एक्सेस लिस्ट आइटम. लिस्ट आइटम आर इंडेक्स्ड एंड यू कैन एक्सेस देम बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर. आप उनको इंडेक्स नंबर से रेफर करके उनको एक्सेस कर सकते हैं. लाइक इफ यू वांट टू एक्सेस बनाना, then index value of banana is 1, so write your list name inside square bracket, write index value of that list. Okay, so we will write this list A, so answer is banana. We use negative indexing. Negative indexing means start from the end.
एंड से हम स्टार्ट करेंगे, लाइक इन दिस केस चेरी इज -1. -1 refer to the last item. Okay, so here last item is cherry and index value of cherry is -1. -2 refers to the second last item, that is banana. -2, apple is -3. If I write print this list -1, then it will print cherry. Okay, in this case if I write print a, then inside that I am writing -2. What is -2? Mango is -1, melon is -2, so it will print -2 के केस में क्या प्रिंट करेगा? मेलन हमें आउटपुट मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज, so likewise you can check negative indexing. Okay, you can specify range of your जहाँ पे आपको वैल्यू एक्सेस करनी है वहाँ पे आप रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. यू कैन स्पेसिफाई रेंज ऑफ इंडेक्सेस बाय स्पेसिफाइंग वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड द रेंज. ओके, जहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे आपको रेंज एंड करना है वो आपको स्पेसिफाई करना रहता है पहले ही. When specifying a range, the return value will be a new list with the specified item. रिटर्न में भी आपको एक लिस्ट मिलेगी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही वैल्यू मिलेंगी, और तो वो आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आउटपुट मिलेगा. लाइक मैंने दिया यहाँ पे दिस लिस्ट इंडेक्स वैल्यू क्या रेंज किया है 2 to 5. 2 कौन सा है हमारा? एप्पल इज 0, बनाना इज 1, सो चेरी इज 2. इट विल स्टार्ट फ्रॉम चेरी 2 3 4 5 जो यहाँ पे दिया है आफ्टर कोलन सिंबल, दिस 5 विल बी एक्सक्लूडेड. सो फिफ्थ आइटम जो है आपका, सिक्स्थ आइटम एक्चुअली, वो एक्सक्लूडेड होगा. 2 का जो आउटपुट है 3 and 4, ओनली वो आउटपुट आपको मिलेगा. Output is cherry, orange and kiwi. You can check in your program also. You can write here 1 2 3. Okay, so it will give you 1 or 2 position value, not third. So 1 or 2 is apple and banana. Save your program every time when you run your program. So apple and banana is your output. Next is likewise, if we are writing only single values after colon, so like I am writing only 3. सो ये क्या होगा? बिफोर 3 ये हमें सब जो भी वैल्यूज हैं वो सब आउटपुट दे देगा, एक्सक्लूडिंग 3, नॉट इंक्लूडिंग 3. ओके, 3 पे जो आउट वैल्यू है स्टोर वो नहीं देगा, इंडेक्स वैल्यू 3. ओके, सो रन योर प्रोग्राम हियर. इंडेक्स 3 इज नॉट इंक्लूडेड. 0 1 and 2 आउटपुट आपको लोकेशन पे जो वैल्यू है मिल रहा है. नेक्स्ट आपका क्या है? आपने यहाँ पे दिया है 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है आफ्टर कोलन सिंबल, देन इट विल गिव यू आउटपुट ऑफ 1 ऑनवर्ड. जो भी आपकी वैल्यू है वो सब प्रिंट करेगा. एप्पल तो 0 है, वो नहीं मिलेगा फर्स्ट एप्पल. सेकंड एप्पल इज 1 एंड दिस ऑनवर्ड्स आपको जो भी यहाँ पे डेटा स्टोर है वो आपको प्रिंट हो जाएगा. ओके, सो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस वन. आफ्टर कोलन या बिफोर कोलन आपने जो लिखा तो अकॉर्डिंगली वो एक्सेस करेगा और प्रिंट करेगा. एंड आफ्टर कोलन जो आपने वैल्यू लिखी है वो प्रिंट नहीं करेगा, उसको वो अवॉइड करेगा, उसको एक्सक्लूड करेगा. रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स, अगर हमें रेंज देना है तो यहाँ पे कैसे लिखना है? -4 -1 लिखा है तो -1 इज मैंगो. कोलन के बाद अगेन हमने -1 दिया है, उसको एक्सक्लूड करेगा, उसको इंक्लूड नहीं करेगा. कोलन के बाद अगर पॉजिटिव वैल्यू का वैल्यू है या नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू है, दोनों को ही वो एक्सक्लूड कर रहा है. 2 3 and 4 इज ऑरेंज, कीवी एंड मेलन, इसको वो प्रिंट करेगा. -1 to -4 में -2 3 and -4 का वैल्यू वो प्रिंट करेगा, दैट इज ऑरेंज, कीवी एंड मेलन. और आउटपुट में भी वो आपका लिस्ट फॉर्म में ही देगा वो आपको. ओके, चेक इफ आइटम एग्जिस्ट. हमें चेक करना है कि आइटम एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं. टू डिटरमाइन इफ ए स्पेसिफाइड आइटम इज प्रेजेंट इन ए लिस्ट, यूज द इन कीवर्ड. ओके, इन कीवर्ड हम वहाँ पे चेक करेंगे. लाइक हमें चेक करना है एप्पल इज प्रेजेंट है या नहीं हमारी लिस्ट में. लाइक हमें यहाँ पे चेक करना है कीवी इज प्रेजेंट और नॉट. इफ कीवी हमारा क्या है? एक स्ट्रिंग है, सो वी विल राइट इन डबल कोट्स कीवी इन लिस्ट नेम क्या है? ए है, इज ट्रू, देन वो प्रिंट करेगा प्रेजेंट. एल्स में क्या प्रिंट करेगा? नॉट प्रेजेंट. नॉट प्रेजेंट. ओके, सो इन दिस केस वो हर एक आइटम को चेक करेगा इफ कंडीशन
ए के हर एक आइटम को, अगर उससे कीवी किसी आइटम के साथ मैच हो गया तो वो प्रेजेंट प्रिंट कर देगा। पूरी लिस्ट उसने चेक कर लिया और उसको कीवी कहीं भी नहीं मिला, देन वो नॉट प्रेजेंट प्रिंट कर देगा। ओके, पूरा लिस्ट आपका चेक होगा यहाँ पे। प्रेजेंट इज आंसर। इफ आई वांट टू चेक वाटरमेलन, लाइक, and watermelon is not in my list, so नॉट प्रेजेंट। ओके, आइटम प्रेजेंट है वहां पे तो आपने जो इफ के अंदर स्टेटमेंट दिया है वो प्रिंट हो जाएगा, नहीं प्रेजेंट है तो एल्स के अंदर जो आपने स्टेटमेंट दिया है विल एग्जीक्यूट। नेक्स्ट इज चेंज लिस्ट आइटम। अगर आपको लिस्ट आइटम वहां पे कोई भी पार्टिकुलर आइटम चेंज करना है देन यू कैन यूज दिस मेथड। ओके, you write your list name, like my list is A and I want to change location one item. Okay, that is one, and there I want to write watermelon. Okay, if I write print before this and after this, we'll get different output. Print of A and one more print after this, change print of A. Okay, this second apple index value 1 is changed by watermelon. So you can change list item values like this. Specify index value of that item here and specify value here, and you can change रेंज ऑफ आइटम वैल्यूज। अभी क्या हमने एक सिंगल आइटम चेंज किया है, एक रेंज ऑफ आइटम हमें अगर चेंज करना है, लाइक हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन हम चेंज करना है तो हम उसको एक रेंज में भी डिफाइन कर सकते हैं। To change the value of item within a specified range, define a list with the new values and refer to the range of index number where you want to insert the new values. ओके, यहाँ पे आपको 1 to 3 रेंज देना है, दैट मीन्स 1 और 2 वो इंक्लूड करेगा, थर्ड वो इंक्लूड नहीं करेगा। और वहाँ पे वैल्यूज क्या है हमारी, ब्लैक करंट एंड वाटरमेलन। तो 0 1 एंड 2, 1 एंड 2 पे बनाना एंड चेरी को रिप्लेस करेगा ब्लैक करंट एंड वाटरमेलन से। सो आउटपुट इज एप्पल, ब्लैक करंट, वाटरमेलन एंड रिमेनिंग ऑरेंज, कीवी एंड मैंगो। If you insert more item then you replace, the new item will be inserted where you specified and the remaining item will move accordingly. जहाँ पे आप इंसर्ट करते हो ना उसके बाद रिमेनिंग आइटम अकॉर्डिंगली मूव कर जाते हैं। लेस या मोर आइटम अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं, लाइक 1 to 2 मैंने रेंज दिया है, ये क्या करेगा 1 पे जाएगा 2 पे नहीं जाएगा, मीन्स ओनली लोकेशन 1 वो यूज करेगा। बट वी आर इंसर्टिंग 2 आइटम्स हियर, दैट मीन्स 1 क्या है हमारा बनाना, बनाना के प्लेस पे हमने 2 आइटम यहाँ पे दिए हैं, तो एप्पल हमारा सेम रहेगा, चेरी हमारा सेम रहेगा। इन प्लेस ऑफ बनाना ये 2 आइटम ऐड हो जाएंगे। सो एप्पल, ब्लैक करंट एंड वाटरमेलन एंड चेरी इज योर आंसर। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी आइटम देन we'll discuss later. ओके, अगर 1 to 3 पे कितनी वैल्यूज वो लेगा, यहाँ पे एक और एग्जांपल है 1 to 3 मीन्स वन फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स वैल्यू, थर्ड वो इंक्लूड नहीं करेगा, बट आइटम इज ओनली वन, तो इंडेक्स वैल्यू के लिए एक आइटम भी आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। सेकंड और थर्ड को, फर्स्ट और सेकंड आइटम को वो बनाना एंड चेरी को वो रिमूव करेगा दोनों को, और वहाँ पे एक ही आइटम ऐड कर देगा दोनों के प्लेस पे, दैट इज वाटरमेलन। ओके, नेक्स्ट इज इंसर्ट फंक्शन। To insert a new list item without replacing any of the existing values, we can use the insert method. हमें जो ये आइटम है इनमें से किसी को भी चेंज नहीं करना है, still we want to insert any new item, then we can use insert function. Okay, the insert method insert an item at the specified index. कुछ specific location पे हम insert कर सकते हैं. We need to specify the index value of that item. So this is our list, and this we write variable name of our list dot your insert function, then write index value comma your value जो आपको insert करना है. Okay, so we will write a dot insert, मुझे second location पे 2 value add करना है, then we can insert it like this. So here I am writing print statement of A and another print statement after this change. So print A. So our value 2 is added at index 2. Index 2 है ये हमारा index value है, ये हमारा value है. Okay, at index 2 if I am adding value 3 then it will print 3 there.
बट इंडेक्स 2 पे 3 वैल्यू हम ऐड करेंगे. इंडेक्स वैल्यू वी नीड टू स्पेसिफाई फर्स्ट, देन कॉमा, देन वैल्यू. वी कैन इंसर्ट एनी data type value like at 1 I want to add pineapple. So at 1 apple is replaced with pineapple. Sorry, not replace, inserted. 1 पे हमने pineapple insert किया है, then ये onwards उसके बाद में प्रिंट होगा. इससे पहले एप्पल का इंडेक्स वैल्यू, इस एप्पल का इंडेक्स वैल्यू 1 था. नाउ दिस एप्पल इंडेक्स वैल्यू इज 2. Okay. Likewise, you can use insert function in case of your Python list. Next is append function. To add an item to the end of the list, use the append method. हमें क्या यूज करना है? Your list का वेरिएबल नेम डॉट append एंड राइट एंड में यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करनी है, पैरेंथेसिस हमें यूज करना है इन केस ऑफ append फंक्शन, और वो लिस्ट के एंड में आइटम को ऐड करेगा. लाइक इन अवर एग्जांपल a डॉट append, और मुझे एंड में पाइनएप्पल ऐड करना है. print a, so पाइनएप्पल हमारा एंड में ऐड हो गया है लिस्ट में. इस तरह से आप एंड में अगर कोई आइटम ऐड करना चाहें तो यूज append मेथड, और बीच में अगर आप कोई भी आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं देन यूज इंसर्ट फंक्शन. ओके, मेथड एंड फंक्शन दोनों को ही हम फंक्शन कॉल करते हैं. We already discussed this topic. So किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हमें कोई भी आइटम इंसर्ट करना है then we use insert function. Okay, next is extend the list. मेरे पास एक लिस्ट है, this list second list name is tropical. Okay, मुझे ये लिस्ट के एंड में ये सेकंड वाला लिस्ट ऐड करना है, तो क्या राइट करेंगे? this list dot extend function and inside parenthesis we write list2 variable name. list2 variable name is tropical. Okay, to append element from another list, हमें append करना है element from another list. append means end में add करना है to the current list, हमारे जो current list में है. then use the extend method, add the element of tropical to the this list. so ये tropical के element हमने this list में add करने हैं, तो we use extend method. extend हो जाएगी हमारे this list, उसके end में append हो जाएंगे tropical के element. so first 3 item हमारा ये print होगा, उसके बाद में this onwards first 3 then ट्रॉपिकल उसके एंड में ऐड हो जाएगा, और वो किस में आ गए हैं? सब दिस लिस्ट के अंदर. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ट्रॉपिकल लिस्ट डिलीट हो गया या कुछ हो गया है, वो हमारा सेम होगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस हमारा दिस लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम उतना बढ़ गया है. नेक्स्ट, अगर हमें कोई भी पार्टिकुलर आइटम उसमें ऐड करना है, कोई भी टपल हमने उसमें ऐड करना है, या सेट या डिक्शनरी हमें उसमें ऐड करना है, जैसे मेरा है दिस टपल को हम पैरेंथेसिस में राइट करते हैं. देयर आर 2 आइटम इन आवर टपल्स, सो वी कैन एक्सटेंड टपल आल्सो इन आवर लिस्ट. राइट योर लिस्ट वेरिएबल नेम डॉट एक्सटेंड फंक्शन, देन राइट योर टपल वेरिएबल नेम, जो जिसमें आपने टपल स्टोर किया है वो वेरिएबल नेम, एंड प्रिंट आपका सब डेटा इसमें आ जाएगा दिस लिस्ट में. तो पहले ये 3 प्रिंट करेगा, उसके बाद में टपल के जो आपने एक्सटेंड करके लास्ट में ऐड किया है उसको प्रिंट करेगा. Next is remove list. If you want to remove any particular data from list, then we use remove function. Okay, specific item को remove करना है. मेरे पास 3 item है, apple, banana and cherry. Then we will write your list variable name dot remove function, and we want to remove banana. Then write banana there. प्रिंट करेंगे तो वहां से क्या होगा? लिस्ट को प्रिंट किया तो हमने बनाना जो हमने रिमूव किया है वो वहां से रिमूव हो जाएगा, और चेरी का इंडेक्स वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाएगा. रिमूव स्पेसिफाइड इंडेक्स, अभी हमने क्या किया? रिमूव फंक्शन से हमने आइटम को रिमूव किया है, बट व्हेन वी वांट टू रिमूव स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू को रिमूव करना है, देन वी विल राइट इट इंडेक्स वैल्यू, एंड वहां पे हम पॉप फंक्शन यूज करेंगे. अगर हम इंडेक्स वैल्यू दे रहे हैं तो पॉप फंक्शन यूज करेंगे, आइटम नेम दे रहे हैं तो हम रिमूव फंक्शन यूज करेंगे. ओके, द पॉप मेथड रिमूव द स्पेसिफाइड इंडेक्स, और इसका मेथड क्या है राइट करने का? राइट योर नेम ऑफ लिस्ट डॉट पॉप एंड इंडेक्स वैल्यू. इंडेक्स वैल्यू 1 किसका है? एप्पल इज 0, बनाना इज 1. सो ये क्या करेगा? पॉप आउट करेगा, रिमूव आउट करेगा बनाना फ्रॉम अवर दिस लिस्ट. ओके,
After this, if you want to print this list, then it will print apple and cherry. Okay, if you don't specify the index, the pop method remove the last item. अगर हमने उसका इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उसके लास्ट आइटम को रिमूव कर देगा. लाइक इन दिस एग्जांपल हमने लिखा पॉप मेथड, बट हमने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू उसका स्पेसिफाई नहीं किया है. देन यहाँ से हमारा लास्ट आइटम क्या था लिस्ट का, चेरी. देन ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, चेरी आइटम को वहां से रिमूव कर रहा है. नेक्स्ट इज del कीवर्ड. ओके, द del कीवर्ड आल्सो रिमूव द स्पेसिफाइड इंडेक्स del दिस लिस्ट, और उसमें हमें क्या करना है, इंडेक्स वैल्यू. आपको यही फॉर्मेट यूज करना है, यही मेथड उसका. अगर आपने del यूज किया है तो यू नीड टू राइट इंडेक्स वैल्यू ऑफ इट. ओके, आपको इंडेक्स वैल्यू नहीं पता, देन यूज रिमूव मेथड. ओके, उसका मेथड अलग है, राइट वेरिएबल नेम डॉट रिमूव फंक्शन इनसाइड दैट राइट वेरिएबल नेम. del दिस लिस्ट और यू स्पेसिफाई इंडेक्स वैल्यू ऑफ जो आपको पार्टिकुलरली कोई एलिमेंट डिलीट करना है. देन प्रिंट करेंगे दिस लिस्ट, तो क्या हो जाएगा, 0 लोकेशन पे हमारा जो एलिमेंट था वो डिलीट हो जाएगा, रिमेनिंग 2 वहां पे प्रिंट हो जाएंगे, दैट इज बनाना एंड चेरी. ओके, द del कीवर्ड कैन आल्सो डिलीट द लिस्ट कंप्लीटली. अगर हमें पूरी लिस्ट जो हमने क्रिएट की है, लाइक इसमें 3 एलिमेंट है और मुझे दिस लिस्ट ही डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, del फंक्शन. ओके, del इज नॉट फंक्शन, सॉरी, del हम यूज करेंगे. del एंड स्पेस राइट योर लिस्ट नेम. ओके, इफ उसके बाद अगर मैं प्रिंट करना चाहती हूँ ये लिस्ट हमारी, तो हमें एरर मैसेज मिलेगा, नेम दिस लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है तो हम एक्सेस ही नहीं कर सकते. डिलीट करने के बाद हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, डिलीट करने के नेक्स्ट लाइन में हम उसे प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं. अगर प्रिंट हमने पहले दिया होता तो वो प्रिंट करके फिर डिलीट करता, बट यहाँ पे हमने डिलीट किया है तो अभी हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट, अगर हमें लिस्ट को क्लियर करना है, उसके सब लिस्ट डिलीट नहीं होना चाहिए, हमारा वो वेरिएबल नेम सेम रहेगा, बस उसका कंटेंट जो उसमें डेटा है वो हमारा डिलीट करना है. देन द क्लियर मेथड एम्प्टीज द लिस्ट, उसको एम्प्टी कर देता है. द लिस्ट स्टिल रिमेन्स, लिस्ट रहेगा बट इट हैज नो कंटेंट, उसमें कोई भी डेटा नहीं रहेगा. क्लियर द लिस्ट कंटेंट. ओके, सो यहाँ पे एक लिस्ट है, वहां पे 3 एलिमेंट्स हैं और हमने लिखा दिस लिस्ट डॉट क्लियर. तो क्लियर फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा उसके सारे एलिमेंट्स को वहां से रिमूव कर रहा है. अगर हमने प्रिंट दिस लिस्ट किया तो वो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट हमें प्रिंट हो जाएगी वहां पे. ओके, नेक्स्ट इज लूप थ्रो ए लिस्ट. अगर आपको लूप करना है, थ्रो लूप आपको प्रिंट करना है उसके आइटम को, लिस्ट के आइटम को, then you can use either for or while loop. Okay, this list apple, banana and cherry, like we have 3 item in our list, then we write 4x in this list. x क्या करेगा, 0 इंडेक्स वैल्यू से लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक हर एक आइटम को एक्सेस करेगा, और उसमें हमने प्रिंट फंक्शन दिया है तो उसको प्रिंट करता जाएगा. नेक्स्ट, पहले उसने एप्पल प्रिंट किया. ओके, एंड नेक्स्ट उसने बनाना, चेरी, ये सब वो प्रिंट किया है. 1 आइटम को एक्सेस करेगा, 1 आइटम को प्रिंट करेगा. लूप थ्रू द इंडेक्स नंबर, वो क्या किया था हमने, डायरेक्टली वहां पे लिस्ट दे दिया था, और हमें इंडेक्स नंबर से लूप करना है तो क्या करेंगे, रेंज और लेंथ फंक्शन यूज करेंगे. रेंज हमारा जाएगा लेंथ, जहां तक उसकी लेंथ है ना दिस लिस्ट फंक्शन, दिस लिस्ट की, वहां तक वो उसके हर एक आइटम को एक्सेस करेगा और उसको प्रिंट करेगा. प्रिंट आई, आई क्या कर रहा है, उसकी इंडेक्स वैल्यू है, आई 0 वैल्यू ले रहा है इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस लिस्ट, और मैं कर रही हूँ प्रिंट दिस लिस्ट आई, तो 0 इंडेक्स वैल्यू पे कौन सी वैल्यू है, एप्पल. अगर आपने प्रिंट आई किया तो इट विल गिव यू इंडेक्स वैल्यू ऑफ दैट फर्स्ट आइटम. इफ यू राइट प्रिंट दिस लिस्ट आई, इट विल गिव यू आइटम वैल्यू ऑफ दैट 0 इंडेक्स वैल्यू पे क्या आइटम वैल्यू है वो आपको प्रिंट होगा. ओके, राइट योर फंक्शन प्रॉपरली using a while loop. Okay, you can loop through the list item by using a while loop. Use the length function to determine the length of the list. Length function obviously we will use कि उसके पूरा लेंथ हम एक्सेस कर पाए और उसको हम एक एक आइटम को हम स्टोर करके प्रिंट कर सकें. द स्टार्ट एट 0 एंड लूप योर वे थ्रू द लिस्ट आइटम बाय रेफरिंग टू देयर इंडेक्सेस. ओके, रिमेंबर टू इंक्रीज द इंडेक्स बाय 1 आफ्टर ईच इटरेशन. फॉर लूप में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, बट व्हेन यू आर यूजिंग व्हाइल लूप आपको वहां पे लिखना रहेगा आपने जो भी इन फंक्शन लिया है व्हाइल के लिए, वैल्यू लिया है उसको 1 इंक्रीमेंट करने के लिए. सो आई इज 0 while i is less than length of this list, वो हर एक आइटम को प्रिंट करता जाएगा और उसके इंडेक्स वैल्यू को वो इंक्रीज करता जाएगा और एक एक आइटम को वहां पे प्रिंट करेगा. सो यू कैन वो आप एक्सेस कर सकते हो ईच एंड एवरी एलिमेंट को यूजिंग व्हाइल लूप एंड फॉर लूप.
अगर आपको टू लिस्ट को कॉन्केट करना है, एक्चुअली देयर शुड बी स्क्वायर ब्रैकेट बिफोर एंड आफ्टर दिस। ओके, सेम आपका यहाँ पे होगा। तो y में भी आपने, अगर ये भी एक लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट है, दोनों को कॉन्केट करना है, दोनों को जोड़ना है, वन आफ्टर सेकंड प्रिंट करना है। देन राइट थर्ड वेरिएबल z इज इक्वल टू x प्लस वाई। प्रिंट z किया तो पहले x को प्रिंट करेगा, फिर y को प्रिंट करेगा। अगर आपने किसी भी लिस्ट के वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स हमारा लिस्ट वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो स्टार क्या करता है, रिपीट कर देता है हमारी लिस्ट को। स्लाइसिंग अभी हमने पढ़ाई है, वहाँ पे स्लाइस में हमने जो वैल्यू दिया है उस रेंज में वो उसको लिस्ट 2 में फर्स्ट आइटम क्या है पीपीएस, उसको प्रिंट कर देगा। एंड रेंज किया है 0 to 3, तो क्या करेगा 0 to सेकेंड आइटम तक उसकी वैल्यू से प्रिंट कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक आवर वीडियो।